Very good evening, everyone. Good evening again from myself, Harshali Kharche. I'm the founder and the managing director of SNCC Rehab Foundation based in Nagpur. And I welcome Dr. Azra Rafiq and Nadia Riaz here. I will just introduce SNCC. SNCC is Special Needs Integration Center, and we are working on rehabilitation, empowerment, health, and advocacy and belief. So our vision is to empower parents of children with special needs to ensure their peace of mind, satisfaction, and positivity with respect to their child's overall development. Our motto is to set foundation of parents' body capable of providing resolutions to the challenges faced by parents of children with special needs. In this, we are running various programs of awareness, knowledge, and health advocacy. Various programs we are running for this. In this autism awareness program, we are today here with a very important topic, that is screening tools before diagnosis, that is under autism awareness and management. Like, we need this screening techniques we should know before diagnosis, and parents should know these things so that they can observe their child's progress, development, and the diagnosis. Many a times we can see that parents are getting misdiagnosed or they don't understand. I mean, various issues are happening. So they should make themselves aware of these things. So for that, I welcome Dr. Azra Rafiq. Let's meet our respectable guest, Dr. Azra Rafiq. She is consultant pediatrician in Selani Thalassemia Care Center and ZMT Network. She is community health educator also. She is currently serving as a project director, preventive pediatric program and autism surveillance and management project. She is also a writer for public health awareness in Urdu and English newspaper. We also have Nadia Riaz with us. She is special educator, RBT and autism surveillance and management project coordinator without border. She is also behavior therapist. I thank her for the coordination, all the support for this association. I mean, without her support, I could reach to Dr. Azra Rafiq, and I really thankful to her for this. I welcome Dr. Azra Rafiq, and I'll hand over to you, ma'am. Thank you, Ashley. Good evening, all. And first of all, I must say thanks to Ashley and the organization and all the participants that you have invited us and gave us opportunity to speak on the subject. और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं because I am a community health educator, तो मेरी कोशिश ये होगी कि I will speak in Urdu, Hindi, and maybe some terms are used in English. Or with me is my coordinator Nadia Riaz. So I think let's start. Yes, just want to specify one thing, that both are from Pakistan, and we are so happy कि हम लोग यहाँ पे हम पाकिस्तान से एसोसिएट कर रहे हैं और हम नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं. Yes. Yes, so we are now starting our subject, and this session is with SNCC in collaboration with Autism Without Borders and a Special Needs Integration Center with AWB Autism Without Border. और इस वक्त हमारे पास 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और आपके पास 6 बजे हैं. तो इंडिया के साथ ये हमारा बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि नॉट ओनली वी आर नेबर्स बट आवर कल्चर आर ऑलमोस्ट सेम. हम लोग की थिंकिंग और हम लोग का जो वे ऑफ जो भी गुड एंड बैड चीज़ें
दोनों थोड़ी सी हम लोग जो है वो सिमिलर हैं, तो इसलिए बात करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है और टाइम का भी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटिज्म अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग टूल्स बिफोर डायग्नोसिस, है ना। हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे बिल्कुल, और आई विल ट्राई टू बी वेरी सिंपल वर्ड्स में। Actually, this is a part of a autism surveillance and management project. And autism surveillance and management project is preventive pediatric program के अंडर ही आता है। और मेरा इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया है। आई एम डॉक्टर अजरा रफी। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोजेक्ट में जो है एक्चुअली हम सब इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, सेहतमंद बच्चे होंगे तो सेहतमंद कौम होगी हमारी। और जब हम सेहतमंद बच्चों की बात करते हैं तो व्हाट इज प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम, सिर्फ अभी एक डेफिनेशन सिर्फ देख लेना तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज and promotion of physical, mental and social well-being of children with aim of attaining good health, excellent health। क्योंकि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो मोस्टली वी थिंक अबाउट जिस्मानी सेहत, है ना, फिजिकल हेल्थ की, और प्रिवेंशन के साइड पे हम कभी नहीं जाते। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन अगर जो है जब भी मैं ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम करती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ कि जब आप बीमार नहीं होते तो क्या आप जाते हैं डॉक्टर के पास? मेरा ख्याल है कोई नहीं जाता। तो इसलिए जब हम प्रिवेंशन पे प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमें बहुत लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, इंसेंटिव देना पड़ता है कई दफा। अर्न टू लर्न, यानी कि इवन हम बात पे उनको करते हैं। अगर मैं प्रिवेंशन ऑफ एस्थमा पे करूं और कोई नहीं आया, अभी उस बच्चे को एस्थमा होगा तो लोग भागे भागे आएंगे। तो इवन हम लोग जो एजुकेटेड लोग भी प्रिवेंशन के लिए कभी नहीं जाते हैं ना। तो बच्चों के लिए ये तीनों चीजें कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ऑल थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, है ना, फॉर गुड हेल्थ। तो इसीलिए जब मेंटल और सोशल वेलबींग की बात की तो ऑटिज्म जो है वो इसमें फिर ऑटोमेटिक आ गया और फिर हमने इस पे काम शुरू किया। अब एज अ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर, वैसे तो मैं मोस्टली इट इज इंटरेक्टिव है, मैं लोगों से पूछती हूँ कि हु कैन हेल्प विद द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, कौन हमारी हेल्प कर सकता है ना। अब इस वक्त हमारे पास आई डोंट नो कि ज्यादातर मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स हैं, मे बी डॉक्टर्स भी हों, मे बी नर्सेस भी हों। तो इसमें आप देखें कि हमने पूरी कम्युनिटी को, बिकॉज आई एम ए कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर और मैं मदर्स के साथ भी प्रोग्राम करती हूँ और डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग करती हूँ, तो इसमें हमने पूरी कम्युनिटी को दो में डिवाइड कर दिया है ना। एक तो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, दूसरे चिल्ड्रन केयर गिवर। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी भी तरह से जिनका ताल्लुक जो है वो हेल्थ से है ना, उसमें डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन है, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं और हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो डिफरेंट कैपेसिटी में काम करते हैं। पोलियो की वो चल रही होती है तो पोलियो के वर्कर्स के थ्रू हम डोर टू डोर बहुत सारी चीजें पहुंचा देते हैं। फिर लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। अब ये तो एक साइड हो गया। दूसरी तरफ चिल्ड्रन केयर गिवर, देखिए इसमें सबसे ऊपर हमने मदर्स लिखा हुआ है ना, मदर्स तो है ही, लेकिन फादर्स कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते। अभी भी हम देखेंगे तो ज्यादातर फीमेल्स ने ज्वाइन किया हुआ होगा और मेल्स ने नहीं किया होगा। ऑटिज्म पे हम जब भी बात करते हैं ज्यादातर मदर्स ही ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। फिर कई दफा हमारे जो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि हमारी अगर ज्वाइंट फैमिली है या नहीं भी है तो भी ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी, कोई भी पुप्पी, चचा, खाला, ये सारे एल्डर सिस्टर्स बाज दफा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी फैमिलीज में जो है वो एज डिफरेंस इतना होता है कि मे भी जो है बड़ी सिस्टर जो है 10-12 ईयर्स की और अभी न्यू बॉर्न हुआ हो। फिर टीचर्स, टीचर्स बहुत अहम है, क्योंकि डे केयर सेंटर जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हार्शली के साथ हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में तो हर गली में डे केयर सेंटर खुले हुए हैं, है ना, उनको कुछ मालूम नहीं है बच्चों की हेल्थ के बारे में, तो उनको भी ट्रेन करना जरूरी है ना। तो ये हमारा शॉर्ट सा मैंने बताया। अब मैं जो हूँ, क्योंकि नादिया इज हम कोऑर्डिनेटर हैं एंड शी इज अ जेम फॉर मी, आई कैन से हम, और हम एक टीम वर्क होता है, कोई एक शख्स नहीं कर सकता, हम लोग मिलजुल के करते हैं।
तो अब मैं नादिया से जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। जी नादिया। Thank you so much, Dr. Azra, and I'm really grateful to Harshali and SNIC team कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी नॉलेज और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हमारी ख्वाहिश थी कि इंडिया की पॉपुलेशन के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें, एंड दैट जस्ट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू यू पीपल. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया, इसी एम के साथ था कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि जिस तेजी से साथ ये ऑटिज्म इंक्रीज हो रहा है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को कि इसके क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके कॉजेस हैं, क्या, तो इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत जरूरत थी. और हमारा यही पर्पस था. 1 साल हुआ हमें इसको स्टार्ट किए हुए, इस प्रोजेक्ट को, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत है बीइंग मुस्लिम, तो हम लोग इस पे हमने काफी अवेयरनेस सेशंस की हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, स्क्रीनिंग के ऊपर ट्रेनिंग की है. डॉक्टर साहब, यू कैन प्लीज जस्ट मूव द स्लाइड ताकि मैं जल्दी इसको थोड़ा सा बता दूं. इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ASD एंड इंटरवेंशन टू अचीव बेस्ट पोटेंशियल. और यही आज का हमारा टॉपिक भी है कि हम आपको स्क्रीनिंग टूल्स बताएंगे कि जो कि डायग्नोसिस से पहले जरूरी है. अक्सर पेरेंट्स जो हैं उनको ये होता है कि हमारे बच्चे की ये रेड फ्लैग्स हैं, तो इसमें कहीं ऑटिज्म का खदशा तो नहीं है. तो इस वजह से वो कुछ स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो डॉक्टर अजरा आपको डिटेल में बताएंगी कि क्या हम उससे पता चल सकता है कि भाई इसमें डायग्नोसिस की जरूरत है. आगे फर्दर साइकोलॉजिस्ट के पास और पीडियाट्रिशियन के पास, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास, उस तरह वो फिर हम जाते हैं. इसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं लोगों को. फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन में इसके लिए ऑटिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और चिल्ड्रन केयर गिवर्स, एज डॉक्टर अजरा ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. फिर ट्रेनिंग फॉर ASD स्क्रीनिंग, जैसे कि हम इस स्क्रीनिंग में लोगों को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी और चिल्ड्रन केयर गिवर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, मास्टर ट्रेनर्स बना रहे हैं कि वो ईच वन टीच वन के साथ, के एक को हम सिखाएंगे, आगे वो औरों को सिखाएं ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सके. और यही हम आपकी पॉपुलेशन से, इंडिया से और बाकी जिन ममालिक से भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे दरखास्त करेंगे कि वो भी इसी तरह जो भी इधर से सीख के जाए आगे पास ऑन करें, क्योंकि इस चीज की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. उसके बाद फिर रेफरेंस के लिए हम लोगों ने एक ऑटिज्म रिसोर्स डायरेक्टरी पाकिस्तान की डिजाइन की है कि जिसमें सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स या थेरेपिस्ट वगैरह की डिटेल है जो लोगों को इसमें हेल्प आउट करते हैं. इसके चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, या ऐसे रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स जिधर एजुकेशन प्लस रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. तो उन सब की डिटेल्स इधर मौजूद है रेफरेंस में. और बाकी इंटरवेंशन के लोग उसमें इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं उसकी भी हम रेफरेंस देते हैं. और बाकी और फॉलो अप भी रखा जाता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और लोग हमसे, मुझसे, डॉक्टर अजरा से टेली क्लिनिक्स के थ्रू भी हमारी हेल्प ले रहे होते हैं, और हम we are always there to help them out to solve their confusions. So same goes for the population in India. They can also contact with us anytime when they need. And I am now handed over to Dr. Azra for presentation. Thank you so much. Thank you, Nadia. आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे एसएम प्रोजेक्ट बता दिया है. अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं ताकि हम इसको आई विल ट्राई टू मैनेज इन हाफ एन आवर ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें. और हमारा आज का टॉपिक जैसे हमने बात की कि इट इज़ ऑटिज्म अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट ना. तो हम पहले अवेयरनेस पे बात करेंगे, देन मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग टूल्स पे ना. व्हाट इज ऑटिज्म है ना, ये अक्सर हमारे जहन में ख्याल आता है बहुत से लोगों के. और इसमें जैसे आप देख सकते हैं एक पिक्चर के, एक बच्चा थोड़ा सा अलग थलग है, बाकी एक तरफ एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन है.
इसलिए बहुत से लोगों ने इसका ऑटिज्म का जो ट्रांसलेशन किया है वो कि खुद महवियत, यानी कि अपने अंदर गुम होना ना। लेकिन सिर्फ इसी बेसिस पे हम डायग्नोसिस नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। तो ऑटिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर that limits a person's ability to communicate and relate to other people. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एक एक वर्ड जो है ना बहुत अहम होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत ही पेचीदा किस्म का हम, जिसमें आसाबी निजाम भी और बच्चे की जो बढ़ने की नशो नुमा है वो भी मुतासिर होती है ना। और इसमें बच्चे को ये मसला होता है कि दूसरों से कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम होता है। और इसमें देखिए एक वर्ड यूज हुआ डिसऑर्डर, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज का मतलब होता है कि आपको कॉज मालूम है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का वजह हमको पता है, उसका ट्रीटमेंट हमको पता है ना, तो हम उसका ट्रीटमेंट वर्ड यूज करते हैं। जबकि डिसऑर्डर में जो है हमें रीजन पता नहीं होता, उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, तो उसको हमें मैनेज करना होता है, इसलिए इसका मैनेजमेंट देखेंगे ना। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिला, कुछ मैं बिजी थी पिछले दिनों के, मैं इंडिया के स्टेट्स कुछ आपके सामने रखती। मेरे पास पाकिस्तान की जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही हाई हैं, एंड इट इज नाउ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स लाइक एन एपिडेमिक। और इसको ASD कहते हैं। तो ASD पे आप थोड़ा फोकस करें कि और ASD क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जब भी हम ASD का वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स के स्पेक्ट्रम में जो है माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। यानी किसी बच्चे को अगर हमने ऑटिज्म लेबल किया तो एकदम से जैसे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो शॉक्ड नहीं होना है, उसमें हमको देखना है, उसका असेसमेंट करवाना है कि कहाँ पे है। माइल्ड जो ऑटिज्म है वो इजीली मैनेजेबल होते हैं, मॉडरेट में थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें भी इंटरवेंशन चाहिए होता है। और पाकिस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि 1 चाइल्ड इन 59, यानी इतना ज्यादा कॉमन है, इसमें बॉयज में ज्यादा है। इसमें बहुत रिसर्च अभी चल रही है कि क्या वजह है, इसकी लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज भी हमारे पास है, उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बात की है। वो इंशाल्लाह ताला जब भी हमारे पास टाइम होगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे ना। तो हमें इसको मैनेज करना, जितने जल्दी हम इसको मैनेज करेंगे, जितने जल्दी डायग्नोसिस करेंगे, उतने जल्दी इंटरवेंशन होगी, है ना, उतने जल्दी मैनेजमेंट होगी। और मैनेजमेंट खुद पेरेंट्स भी करते हैं और फिर थेरेपिस्ट भी करते हैं। अब कुछ मिसकॉन्सेप्ट हैं वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कि ऑटिज्म जो है ये तो बस बैड पेरेंटिंग है, यानी माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की इसलिए ऐसा बच्चा हो गया है, या ये कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर नॉट किड्स हु मिसबिहेव। बहुत से कहते हैं इतना बिगड़ा हुआ बच्चा है ये। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, हर शख्स की कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसके साथ हमें लेके चलना पड़ता है ना। जो वीकनेसेस हैं उनको हमें कवर करना होता है और स्ट्रेंथ्स को और हमें आगे लाना होता है, ताकि उसके बेसिस पे जो है उसकी लाइफ को हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ये हमको याद रखना है। अब ये कि व्हाट कॉजेज ऑटिज्म, जैसे कि आपको बताया कि इसका कोई रीजन हमें अभी तक पता नहीं है, इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। लेकिन जब हम पूरा जैसे आगे आप देखेंगे कि बच्चा जब यूट्रस में होता है, माँ के पेट में होता है, फिर उसकी डिलीवरी होती है, फिर उसका एक्सपोजर होता है, तो माँ का किस किस चीज से एक्सपोजर हुआ है, माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन इस तरह की केमिकल्स तो नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजंस जो है ना डिस्कस किए जाते हैं। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से भी इनका कोरिलेशन है कि अगर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके साथ दूसरा भी, और अगर एक बच्चे को है फैमिली में तो दूसरे बच्चे की भी कुछ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। अच्छा, ये जो एक मिसकॉन्सेप्ट है, ये हम सबको, जितने भी लोग इस वक्त हैं, जैसे कि नादिया ने कहा कि ईच वन टीच वन, कुछ चीजें जो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो वैक्सीन के अगेंस्ट है, ये पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी यकीनन होगी है, जो वैक्सीन लगाने ही नहीं देते। हालांकि ये चीज इतनी क्लियर हो गई है कि वैक्सीन डोंट कॉज ऑटिज्म, उससे ऑटिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हर वैक्सीन से लोग कुछ ना कुछ, जैसे आजकल इसकी कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उसे पता नहीं क्या क्या चीज रिलेट कर रहे हैं ना, कि चिप लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमको जो साइंटिफिक वे में बात करनी चाहिए ना।
फिर ऑटिज्म अमंग सिबलिंग्स, जैसे आपको बताया कि अगर एक बच्चे को होता है तो दूसरे की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी 77% जो है वो बढ़ जाती है ना। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ डज ऑटिज्म इफेक्ट द ब्रेन, हमारे ब्रेन पे, हमारे दिमाग पे इसके किस तरह से, क्योंकि हमारा दिमाग तो बहुत सारे काम करता है ना, सोचने का भी, और सारी, अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा कभी बाजा फालिज होती है तो हम कहते हैं कि दिमाग के फला हिस्से पे असर हुआ था, इस वजह से फालिज हुआ है। तो इसमें ऑटिज्म में जो है वो एक तो इमोशंस यानी कि जज्बात, दूसरे कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जो है बातचीत करना जो है वो, और फिर बॉडी मूवमेंट्स है ना, उसके ऊपर खास तौर पे असर होता है ना। बाय द टॉडलर्स ईयर सम चिल्ड्रन विद ASD हैव अनयूजुअली लार्ज हेड्स एंड ब्रेन्स, है ना, यानी थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, लेकिन वो हाइड्रोकेफलस नहीं होता। जैसे बाद लोग व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ चीजें इधर उधर शेयर करते हैं, वो गलत करते हैं। हाइड्रोकेफलस एक बिल्कुल अलग चीज है जिसमें जो अंदर पानी भर जाता है ना, उसको कभी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे ना। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम कैसे करेंगे। इसकी जाहिर है कि बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसको समरी ही आज हम कर सकेंगे। तो डायग्नोसिंग इसकी जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका इस तरह से नहीं है कि एक कोई मेडिकल टेस्ट कर लिया और पता चल गया कि टीबी के लिए हम एक टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा मलेरिया का टेस्ट कर लिया, मलेरिया पता चल गया, टाइफाइड का टेस्ट कर लिया तो वही पता चल गया कि ये बीमारी है। नो मेडिकल टेस्ट, है ना। लेकिन बाय एक्सक्लूजन बहुत सारी चीजें क्योंकि मिमिक करती हैं, रिजेंबल करती हैं, तो कुछ चीजें एक्सक्लूड करने के लिए हमें बाज़ दफा टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसका भी आगे जिक्र आएगा, है ना। तो मेन हमारा क्या पर्पज है, डॉक्टर्स का भी और जितने भी हमारे इस वक्त हेल्थ वर्कर्स बैठे हुए हैं या चिल्ड्रन केयर गिवर, हमें किस चीज पे जो फोकस करना है, चाइल्ड्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, मेरे रूम में, मेरे क्लिनिक में जो बच्चा जिस तरह जैसे ही एंटर होता है उसके स्टाइल से ही, है ना, काफी चीजें जो है हम पिक करते चले जाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना। तो हमें जो है ना फोकस होके चाइल्ड्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट को देखना है, दैट विल हेल्प इन द डायग्नोसिस, है ना। हम डायग्नोसिस अभी नहीं कर रहे, हम तो स्क्रीनिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको कहते हैं ना कि आंखें खुली रखनी है, देखना है हमको कि क्या है। तो अगर हमने आंखें खुली रखी तो ज्यादातर क्या है कि 1.5 ईयर 18 मंथ्स पे जो है हमको काफी रेड फ्लैग्स पता चलने लगते हैं, और फिर हम कहीं भी लेके जा सकते हैं उनको ना मजीद कंफर्म करने के लिए। अच्छा, डायग्नोसिंग इन ASD जो है, ASD जहाँ पे भी आएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर सब आएंगे ना। इसमें एक तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है जो कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, और फिर है कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, है ना, यानी कि जो बाकायदा जो है डायग्नोसिस होती है वो किस तरह से होती है और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है इस वक्त वो ASD स्क्रीनिंग, और उससे पहले डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग से हमें बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं ना। तो ये 2 स्टेप यहाँ पे आगे जैसे आप देखेंगे कि फिर 3 स्टेप बन जाएंगे वो। तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए, देखिए हम सबको जो है इस चीज के लिए बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत हैं कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके बाद से हमको रेगुलर उसके वेल बेबी क्लिनिक्स जो होते हैं वहां जरूर ले जाना है। चाहे बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कई दफा मैं मदद से कहती हूँ आप बहुत दिन के बाद क्यों आई, कि नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक था, नहीं बच्चा ठीक था तो भी आपको जाना है ना। और जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 9 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 और 30 मंथ्स में तो ये मस्ट है, और अगर रेड फ्लैग्स हैं तो एडिशनल स्क्रीनिंग भी करनी है। तो हमने अब जैसे कि हार्शली ने बताया कि आई एम ए पीडियाट्रिशियन एट द ZMT क्लिनिक्स नेटवर्क, और उसमें जो है तकरीबन 45 क्लिनिक्स हैं और तकरीबन इससे भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। तो उनको हमने अब ये स्क्रीनिंग जो है वो सिखा दी है, और हमने जो है वेल बेबी क्लिनिक्स तकरीबन 5 क्लिनिक्स पे स्टार्ट कर दिया है ना। अच्छा, अब डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 मंथ्स 24 मंथ्स पे तो करनी है, फिर एडिशनल स्क्रीनिंग कब करनी है, कि एडिशनल स्क्रीनिंग अगर जो है बच्चा जो है प्री टर्म पैदा हो गया, जल्दी वक्त से पहले पैदा हो गया, या उसने क्राई सही नहीं किया, या उसको जो है वो नीला पड़ गया था, या उसको बहुत दिन तक जॉन्डिस रहा,
या कुछ और ऐसी हमको रेड फ्लैग्स उसमें मिल रहे हैं जो हमने डेवलपमेंटल सर्विलेंस किया, जो हिस्ट्री ली है, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मैं असेसमेंट अपनी टेली क्लिनिक पे करती हूँ उसमें पहले तो मैं हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है इन पर्सन देखने की बारी आती है ना। तो अगर जो है आप जहाँ किसी भी डॉक्टर के पास जाती हैं और आपका डॉक्टर जो है रेगुलर चेकअप के लिए बच्चे को नहीं बुलाता, यू मस्ट आस्क, है ना। आपको डॉक्टर से कहना है कि आप मेरे बच्चे का चेकअप करके बताएं कि ये हर चीज में सही है अपनी एज के हिसाब से कि नहीं। फिर उसके बाद जो है ना बाकायदा एक डायग्नोसिस, है ना। जैसे कि टाइफाइड की हम एक दफा जो है मैं बैठी हुई थी और कोई यूके का डॉक्टर मेरे पास आया था, उस वक्त मैं वलीका हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और मैंने जो है ना कुछ साइन सिम्टम देखे, मैंने कहा कि ये तो मुझे एंटेरिक फीवर लग रहा है, ये नहीं कि टाइफाइड लग रहा है। तो वो तो शॉक्ड हो गया। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि टाइफाइड है, क्योंकि वो लोग क्लिनिकली इतना चीजें नहीं देखते जितना हम लोग को अवेयरनेस है उसकी। क्योंकि मैंने उसकी टॉक्सिसिटी और बहुत सारी चीजें हिस्ट्री लेके और मैंने कहा कि ये तो जो है टाइफाइड लग रहा है। उसके बाद जब हमने कंफर्म करना है तो फिर हम कंफर्म करेंगे। तो ऑटिज्म के लिए भी फिर क्या है, कंफर्म करने का जो तरीका है वो है असेसमेंट, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, है ना, फिर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो खास आसाबी निज़ाम के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। अब देखिए हम अगर पूरे पाकिस्तान में अपना देखें तो बहुत कम टोटल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो है 4 या 5 है। इंडिया में मुझे नहीं पता, और इंडिया तो खुद इतने सारे, यानी इतना बड़ा है इंडिया कि हर प्रोविंस और हर वो जो है वो पूरे का पूरा कंट्री है। तो वहां पे क्या सूरत हाल है, और हर यानी कि कितने पेशेंट पे एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है इस तरह का। तो हमें जो है ना खुद अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कि जब हमें अवेयरनेस होगी, हमें आगाही होगी, है ना, तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि इसकी आप डायग्नोसिस करवाएं ना। तो ये सब हमको जो है ना अपने यू ऑल मस्ट कीप इन योर माइंड, है ना। अब हम थोड़ा सा जो है ना साइंस ऑफ ऑटिज्म देखते हैं। सिम्टम और साइन में क्या फर्क होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कि सिम्टम क्या होती है कि जो पेशेंट बताता है, अगर पेशेंट ने कहा कि उसको हेडेक है, दैट इज सिम्टम। और साइन क्या है, जो डॉक्टर ने देखा या हेल्थ वर्कर ने देखा, है ना। तो अब उसमें अगर मदर ने कुछ बताया तो वो तो उसने सिम्टम बताए हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या है बच्चे में। तो इसमें जो है देखिए, बिफोर अ चाइल्ड टर्न्स 3 केयरफुल ऑब्जर्वर कैन सी द साइंस ऑफ ऑटिज्म, है ना। जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है, जिसने आंखें खुली रखी हुई हैं, तो वो देखेगा। तो सम चिल्ड्रन डेवलप नॉर्मली अंटिल 18 to 24 मंथ, पता ही नहीं चलता है, लगता है कुछ है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हम नोट करते हैं, जैसे रिपीटेड मोशंस, रॉकिंग और स्पिनिंग, जैसे कि लट्टू का घुमाए थे, उनकी उनकी कुछ मूवमेंट जो है ना रिपीटेड होती हैं। फिर वो आई कांटेक्ट नहीं होता। अच्छा, आई कांटेक्ट में भी हमें ये देखना है कि हमारा क्या कल्चर है। अगर हमारे कल्चर में बाज़ दफा जो है वो सिखाया ही नहीं जाता कि आई कांटेक्ट करना है, तो बाज़ बच्चों की हैबिट नहीं होती। तो हमको अपने कल्चर के हिसाब से भी देखना है ना। फिर डिलेज इन लर्निंग टू टॉक, है ना, स्पीच जो है उसकी डिले है, या एक दफा शुरू हो हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद अचानक बंद हो गई। फिर रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, जिसको इकोलेलिया कहते हैं ना। फिर कोई माइनर चेंजेस हो तो वो एकदम अपसेट हो जाते हैं, कोई जरा सा शोर हो, कोई घर बदल रहे हैं, कोई और अगर गेस्ट घर में आ गए तो फौरन जो है वो एकदम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन देखिए जो हाईलाइटेड चीज है उसको गौर करें ना, कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दीज साइंस कैन अकर इन चिल्ड्रन विदाउट ASD2, है ना। ये चीजें हमारे उन बच्चों में भी पाई जा सकती हैं जिनको कोई ऑटिज्म नहीं है। तो इसलिए किसी एक चीज की बेसिस पे हम नहीं डायग्नोज करेंगे ना। फिर अर्ली वार्निंग साइंस फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो क्या है, कि नो टर्न टू मदर्स वॉइस, कि माँ की आवाज आई फिर बच्चे ने मुड़ के नहीं देखा, और ज्यादातर बच्चे फौरन जो है वो टर्न करके देखते हैं ना। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज ओन नेम, उसका हम नाम ले रहे हैं मगर वो मुड़ के नहीं देख रहा। नॉट लुक पीपल इन द आई, वही आई कांटेक्ट उसका नहीं है। हैव नो बेबलिंग, बेबलिंग क्या चीज है, बेबलिंग ये है कि जो बच्चे कोई ना कोई आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं बिफोर 1 ईयर ही, है ना। 8 मंथ्स 9 मंथ्स पे जो है बच्चे कुछ ना कुछ आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, और जो आवाजें निकालते हैं उसको बेबलिंग कहते हैं।
और अम्मी कहती हैं कि भाई ये तो मामा कह रही हैं, और अब्बा कहते हैं कि वो तो बाबा कह रहे हैं, हालांकि उसकी वो कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं होते। तो अगर 1 ईयर हो गया, बेबलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, कोई पॉइंटिंग भी, किसी चीज पर वो पॉइंट करके इशारा करके भी नहीं बात कर रहा है, कोई स्माइल है ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई सोशल क्यूज नहीं है, तो फिर हमें जो है वी मस्ट बी अलर्ट। लेकिन हमेशा इस ध्यान में रखें कि द बेबीज who do not have autism, they may have all these signs, है ना। तो हमें जो है ये नोट तो करना है, लेकिन हमें फिर किसी से जाके मशवरा करना है। फिर जैसे कि 2 इयर्स में हमें अलर्ट होना है कि 2 इयर्स तक क्या क्या बच्चे को आना चाहिए। द साइंस ऑफ ऑटिज्म आर मोर नोटिसेबल इन अ चाइल्ड सेकेंड ईयर, while other children are forming their first words and pointing to things। ये जो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं दूसरे बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं, ये थोड़े से डिटैच हो जाते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। कोई सिंगल वर्ड बाबा मामा भी अगर 16 मंथ तक बच्चे के मुंह से नहीं निकला है, कोई प्रिटेंड गेम वो नहीं खेल रहा है। प्रिटेंड गेम क्या, कि जैसे बच्चे कोई भी चीज उठा के जो है यूं उठा के जो फोन करने में हेलो हेलो कर रहे हैं, या बच्चियां जो हैं वो कुछ घर घर खेलती हैं, या ये डिफरेंट जो भी वो प्रिटेंड गेम्स होते हैं, तो अगर वो बिल्कुल ये कुछ भी नहीं कर रहा है, और अगर 2 साल का हो गया, 2 वर्ड्स के भी सेंटेंस नहीं बोल रहा है, या एक दफा उसने सीख लिया था फिर अचानक उसकी स्पीच लॉस हो गई है ना, फिर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं कुछ पॉइंट करके बता रही हूँ वो देखो, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट होंगी, है ना। फिर कुछ और साइंस भी हैं कि ऑटिज्म के बच्चों में, अब देखिए ये सारी चीजें और बच्चों में भी होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और बच्चों में भी होते हैं। इन बच्चों में ये है कि थोड़े से ज्यादा चूजी होते हैं। नॉन ऑटिस्टिक बच्चे भी बहुत चूजी होते हैं, उनको भी तरह तरह के बहुत इश्यूज होते हैं कि ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, हालांकि वो ऑटिज्म नहीं होते हैं, है ना। तो इन बच्चों में भी जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर कई एक चीजें मिल जाती है ना, फिर हम कहते हैं कि भाई ये ऑटिज्म हो सकता है। इनको कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कभी स्लीप का प्रॉब्लम, देखिए ये सारी चीजें भी डाइट रिलेटेड भी बहुत है। फिर हमारा क्या वे ऑफ स्टाइल है रहने का, है ना, कि हम खुद तो रात देर देर तक नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि कई मदर्स की जिनकी मैंने काउंसलिंग की उनके बच्चों की स्लीप जो है वो सही हो गई, वो ऑटिस्टिक नहीं थे, और इवन अगर ऑटिस्टिक थे तो भी उनकी स्लीप बेहतर हो गई। फिर चिल्ड्रन में हैव पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ द लार्ज मसल्स, है ना। एक तो ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है, तो बाज दफा बच्चे जो है वो जैसे लिखना कुछ पकड़ना जो है उनके लिए मुश्किल होता है, और बाद बच्चों के लिए ग्रॉस मोटर ये नहीं कि जो है वो स्विंग्स पे नहीं चढ़ेंगे, पार्क में जाएंगे, ऊपर किसी झूले पे नहीं चढ़ेंगे, इस तरह के काम नहीं करेंगे, है ना। सीढ़ी पे चढ़ने से थोड़े से वो होते हैं, तो ये चीजें फिर बाज दफा उनको जो है ना फिट्स होते हैं, है ना। फिट्स का मतलब जैसे कि उनको झटके पड़ रहे होते हैं, तो झटके की भी बहुत ही सीजर जो होते हैं, सीजर उनकी बहुत सारी तरह की किस्में होती हैं, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, वो हमें रूल आउट करने होते हैं कि क्या वजह है। फिर स्पीच प्रॉब्लम जैसे हमने पहले ही बताया कि रेगुलर चेकअप में जैसे हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं, उसी में पता चल जाता है अच्छा बच्चा इतना बड़ा हो गया अभी तक बोलना नहीं सीखा, तो फौरन जो है यू मस्ट बी कॉन्शियस, है ना। इसमें हमें पहले हियरिंग का टेस्ट, पैरा टेस्ट कराते हैं। फिर पुअर सोशल स्किल्स होती हैं, है ना, यानी कि वो जो है पहले बात की कि जो है वो दूसरों से जो है वो मिलने जुलने में, दोस्त बनाने में, ये सारी चीजों में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो बाज़ दफा नॉर्मल बच्चों में भी होता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो नॉर्मल तो सारे ही होते हैं, क्योंकि ये ऑटिज्म की एक डिफरेंट एबिलिटीज वाली बात होती है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है, इनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती है ना। तो इसमें जो है इनको थोड़ा सा ट्रबल होता है, और जो नॉन ऑटिस्टिक वो भी बात है इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड, आपने नाम सुने ही होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हमको नोट करनी है, और फिर हमको जाके जो है डिस्कस करना है ना। और फिर जैसे आपको बताया कि कोई मेडिकल टेस्ट तो है नहीं, तो फिर हम जो है वो डिटेल एवोल्यूशन करवाएंगे, जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, साइकोलॉजिस्ट है, और अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो कम होते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते, उनसे अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, तो हम डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कि उनको हम मास्टर ट्रेनर बनाएं, ताकि वो उनको भी थोड़ा सा ये इख्तियार हासिल हो जाए कि वो भी डायग्नोसिस कर सकें, है ना, ताकि हमारा इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए। और ये भी याद रखें कि अगर इवन डायग्नोसिस ऑटिज्म की नहीं हुई है, अगर बच्चे में कोई भी लैकिंग है, उसका हम मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे फौरन।
फिर एक वर्ड आपने सुना होगा एस्पर्जर सिंड्रोम, ये भी इसकी एक वेरिएंट है जिसमें बच्चे में कोई इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट नहीं होता, ज़हनी तौर पे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस वो थोड़े से डिफरेंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत अक्सर जो है ना वो कामयाब बहुत होते हैं। अब हम मैनेजमेंट में बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस पे बात करती, अगर मैं टाइफाइड पे बात करती तो मैं लिखती ट्रीटमेंट प्लस मैनेजमेंट, दोनों चीजें, लेकिन यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में बिहेवियर के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे साथ नादिया है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये बिहेवियर के प्रोग्राम्स भी करेंगी, बिहेवियर थेरेपी पे भी बात करेंगी, फिर एजुकेशन यानी कि जो है बच्चे की जो है वो किस तरह से उसको लर्निंग की तरफ हम ले जाएं, फिर अगर उसको किसी मेडिसिन की जरूरत है तो कौन सी मेडिसिन हम यूज करें, है ना, ये भी डॉक्टर का ही काम है, डॉक्टर का, पीडियाट्रिशियन का या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन उसके लिए अगर सजेस्ट करना है तो। अब ये बिहेवियर प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, इसमें हम अभी नहीं जाते क्योंकि इसमें हम फिर पूरा प्रोग्राम करेंगे, है ना, ये मैनेजमेंट में ही आता है और ये इंटरवेंशन में आता है। इसमें टीच प्रोग्राम भी है जो नादिया जानती हैं, ABA है, फिर फ्लोर टाइम प्रोग्राम है, बहुत सारी चीजें नेट पे मौजूद हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो खुद भी सीख सकते हैं और खुद भी उसका हिस्सा बन सकते हैं ना। फिर एकेडमिक्स यानी कि उनको स्कूल का हिस्सा बनाना, उनको इंक्लूड करना जब भी वो इस चीज के लिए रेडी हों, है ना, कि वो पॉटी ट्रेन हो गए हैं, बास स्कूल तो खैर पॉटी ट्रेन होना भी जरूरी नहीं समझते, अगर वो कमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ चीजें अगर हैं तो उनको स्कूल का जो है हिस्सा बनाना, है ना, ये सारी चीजें सारी डिटेल हैं। फिर मेडिसिन, जैसे आपको बताया कि मेडिसिन भी ये ज़ाहिर है आम लोगों का काम नहीं है, ये जो भी प्रोफेशनल्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे को मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है या कितनी डोज में है। फिर सेंसरी प्रोसेसिंग, जैसे आपको पता है कि सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं, जैसे इस वक्त अभी हम सब बैठे हैं और जितनी भी लाइट हम पर पड़ रही है, अगर इससे कम ज्यादा होगी तो खुद ब खुद हम उसको एडजस्ट कर लेंगे ना, हम उससे कुछ अनईजी नहीं होंगे। इसी तरह जो भी हमारा टेस्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट कोई टेस्ट होगा तो उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। टच की भी, अगर हमने बुक को हाथ लगाया तो बुक का जो टेक्सचर है वो हम फील कर सकते हैं ना, जो भी 5 सेंसेस हैं। सेंसरी इश्यूज का मतलब है कि जो 5 सेंसेस हैं उसमें उनके थोड़े से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्मेल उनको बातों पर अजीब अजीब आ रही होती है, तो उसको भी एड्रेस करना होता है और उसको भी जो है वो रीडायरेक्ट करना होता है ना। अभी हमने पिछले दिनों स्ट्रीमिंग बिहेवियर और हाउ टू रीडायरेक्ट पे भी बहुत अच्छा सेशन हमारा हुआ था। फिर अब बहुत एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को जो है ना स्क्रीन से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि स्क्रीन भी एक, जब हम रीजंस पे बात करते हैं, हम कॉजेज पे बात करते हैं, तो स्क्रीन जो है बहुत बड़ा एक रीजन भी है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम कम से कम, लेकिन आजकल मजबूरी है कि कोरोना के दौर में है हम, और बहुत सी हमें टेलीथेरेपी ही करवानी पड़ती है ना। फिर ये डाइट पे जैसे मैंने आपको बात की कि नॉन ऑटिस्टिक बच्चों के भी डाइट के प्रॉब्लम होते हैं, उनको भी माएँ कितनी मुसीबतों से खिलाती हैं। इनके भी बाज़ ऐसा होता है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। आजकल भी हमारे पास एक बच्चा है जिसका भी इस पे रिसर्च हो रही है, उसके बहुत ही ऊँचे किस्म के टेस्ट कराए गए हैं, क्रोमोसोमल किस्म के, कि जिसमें ये पता चले कि इसका ऑटिज़्म पहले हुआ कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी पहले हुई। तो अभी उसको हमने सीलियक भी लेबल किया हुआ है और ऑटिज़्म भी। हो सकता है उनकी मदर हों इसमें मौजूद, अगर वो होंगी तो उनसे भी हम कुछ इनपुट ले लेंगे। फिर स्कूल में जैसे आपको बताया कि इंक्लूजन की बात है, तो हमें अगर हमारा बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है तो लिविंग विद ऑटिज़्म, यानी इसको हमें अपने एक पॉजिटिव, हमें हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि फर्ज करें इस पे पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे अभी पिछले दिनों मेरे पास एक बच्चा एपिलेप्सी का आया, यानी कि उसको झटके पड़ते थे, तो उसकी मदर ने कहा कि इतने दिन तक तो मैंने दवाई दी थी फिर मैंने बंद कर दी। मैंने कहा कि देखो, जैसे कि इस वक्त मैं फर्ज करें कि मेरी अगर नजर थोड़ी कमजोर है और अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत होगी मैं क्या करूंगी, ये मैंने चश्मा लगा लिया, तो ये इसके बगैर बाज लोग नहीं चल सकते बगैर चश्मे के। इसी तरह से हियरिंग एड लगा लिया, तो लिविंग विद दैट प्रॉब्लम, तो अगर ऑटिस्टिक है तो लिविंग विद ऑटिज्म, तो अगर कोई दवा पूरी उम्र भी खानी है और उसकी वजह से अगर बच्चा ठीक है तो फिर व्हाई नॉट, है ना। तो ये हमें ज़हन में रखना है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा है हमारे घर में या हमारे जानने वालों में, तो हमको जो है उसके लिए
वेलकमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हम, क्योंकि हमारे कल्चर में ये बहुत हर चीज अजीब सी बन जाती है, तो कोई भी चीज जो है वो अजीब नहीं है, क्योंकि नॉन ऑटिस्टिक भी जो है वो हर शख्स अलग है, हर एडल्ट भी अलग है, इसी तरह हर बच्चा भी अलग है ना, तो हर बच्चे को अलग तरह से ही एड्रेस करना चाहिए। तो अर्ली स्क्रीनिंग पे हम बात कर चुके हैं कि 18 मंथ्स, 24 मंथ और उसके बाद जो है वो एज नीडेड है ना। अब स्क्रीनिंग टूल्स आपके लिए देखें, ये मैं आपके लिए पूरी गाइडेंस है। आप ऐसा करें कि ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर की वेबसाइट है, उस पर चले जाएं और लिखा होगा स्क्रीनिंग टूल्स, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो आपसे पूछेगा कि ये टॉडलर्स का करना है कि बड़े बच्चों का या एडल्ट्स का। तो क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं कि जितने जल्दी, जो मेरी स्क्रीनिंग है वो 1.5 to 3.5 फॉर ASD, तो उसके लिए जो है MCHR है ना, ये है मेन। 1.5 to 3.5 के बच्चों को जो है हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और जितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे का खुद आप स्क्रीन कर लें। फिर बड़े बच्चों के लिए कास्ट का है 3 to 11, बल्कि ये 3 क्या, मैं तो 4 to 11 यूज करती हूँ। तो ये पॉसिबल साइंस ऑफ ऑटिज्म हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर ये 10 साइंस लिखे और 10 में से अगर 5-6 आ गए हैं, या इनमें 10 में से भी बाद लोग 7 को फोकस करते हैं, कहते हैं 5 आउट ऑफ 7 है, तो इट मीन्स के बच्चे को जो है वो बच्चा ऑटिस्टिक है। डिटेल असेसमेंट तो हम बाद में करवाएंगे, लेकिन उसका हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर देंगे ना। तो पॉसिबल साइंस ऑफ ऑटिज्म एट एनी एज, ये सारी चीजें जो हम आपसे बात कर चुके हैं, ये किसी भी एज में अगर पहले हमने नहीं डायग्नोस किया, बाद में हमने देखा कि चीजें हैं, तो हम फौरन क्या करेंगे कि फौरन सोचेंगे कि ये भाई ऑटिज्म है और हम इसकी असेसमेंट करवाएं, फौरन जो है इसका कोई ना कोई मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें ना। तो स्क्रीनिंग टूल्स आपको बताया ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स पे टॉडलर्स के लिए MCHR, ये किसका शॉर्ट है, ये डायना का बनाया हुआ है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, ये करेंगे 3 to 11 ईयर्स जो है वो बड़े बच्चों का है। आपको बताया कि जैसे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, सिर्फ हमको चाइल्ड बिहेवियर डेवलपमेंट को देखना है, डिटेल हिस्ट्री लेनी है। और डिटेल हिस्ट्री में देखें, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए अगर कोई है, तो मैं थोड़ा सा इसका टिप्स बता रही हूँ कि GDD ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का क्या मतलब है कि बच्चे ने वक्त बैठना नहीं सीखा, या हेड होल्डिंग नहीं की, या चलना नहीं सीखा, या बोलना नहीं सीखा। फिर सोशल कम्युनिकेशन डिले जो आपको बताया कि बच्चे का दूसरे से ताल्लुक नहीं है, उसमें डिले अगर आ रहा है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले, कि जितनी उम्र पे उसको जो उसकी समझ होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो वी मस्ट बी कॉन्शियस। जब तक ये डिटेल हिस्ट्री नहीं लेंगे ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद ASD, यानी ये 4 हैं, GDD, SCD, IDD, ASD। ठीक है, इसमें हमें डिटेल एंटीनेटल हिस्ट्री लेनी है, नेटल हिस्ट्री के डिलीवरी कहाँ हुई, कैसे हुई, डिलीवरी के बाद बच्चे को क्या क्या हुआ, क्या खाता पीता है, कितनी दफा दूध पीता है, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं। इवन मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो पोस्ट पोलियो पैरालिसिस के हैं, उनको ऑटिज्म लिख के हैं कि वो चल नहीं रहा, और जाहिर है कि उसके फिर बिहेवियर के इश्यूज भी होते हैं, बच्चे को निग्लेक्ट हो रहा है, तो उसको ऑटिज्म बना के लेकर आ गए हैं। तो हम फिर वैक्सीनेशन की भी हिस्ट्री लेते हैं। अब लैब टेस्ट में जो है वो जाहिर है कि अकॉर्डिंगली जैसी बच्चे की जरूरत है, उसको खून की कमी तो नहीं है, विटामिन D की डेफिशिएंसी तो नहीं है, फिर हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, एंडोक्राइंस की कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, EEG बाज़ दफा करानी पड़ती है, बाज़ दफा MRI करानी पड़ती है अगर एब्गार स्कोर कम होता है। तो ये हर बच्चे में जो है अलग ब्लड टेस्ट होते हैं। तो अब हमें किस चीज पे फोकस करना है कि डेवलपमेंटल सर्विलेंस वो डिटेल हिस्ट्री है, फिर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ASD स्क्रीनिंग जो मैं आपको बताऊंगी, और कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ये हमारा टॉपिक नहीं है ना, ये हम आपसे पहले से बात कर चुके हैं कि कब करना है, यानी ये 3 वक्त में तो करना ही है, लेकिन रेगुलर चेकअप के लिए जरूर ले जाना है। ये नहीं कि अगर हमने 9 मंथ्स में नहीं कराया तो हम जाए नहीं, अगर वो मिस हो गया तो हम बाद में चले जाएं, बल्कि उससे पहले भी चले जाएं, क्योंकि मैंने तो 0 to 1.5 अलग में स्क्रीनिंग करती हूँ, और फिर 1.5 to 3.5 अलग करती हूँ। तो ये 3 में हम डिवाइड करेंगे। वेल बेबी क्लिनिक्स रेगुलर जो चेकअप्स होते हैं वो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है, और ASD स्क्रीनिंग है ना, ये लिख लें।
ग्रोथ क्या चीज है? ग्रोथ है बच्चे की वेट और हाइट। वेट और हाइट के साथ साथ बार दफा सर्कमफ्रेंस पूरा लिया जाता है ना बच्चे का, हेड का सर्कमफ्रेंस, तो वो ग्रोथ मॉनिटरिंग में आता है। फिर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, जो जैसे आपको बताया कि उसकी जो है हेड होल्डिंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सारी चीजें। और फिर ASD। देखिए इस तरह के ग्रोथ चार्ट्स आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएंगे, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं, या अगर आप लोग अपना एक रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर रन कर रहे हैं हार्शली, तो आप लोग खुद भी ये अपने बच्चों की ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ये बहुत ही ईजी है, ये सिंपलेस्ट है जो हम अपने ZMT में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एज देखनी है बच्चे की और वेट देखना है, और उसके हिसाब से हमें लेबल करना है कि ये रेड में है, कहीं बहुत ज्यादा इसको मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत मेल न्यूट्रिशन के बच्चे मिलते हैं। मेल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? कि ग़िज़ा की इंतहाई कमी। तो क्योंकि उनके मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, और फिर येलो साइन ये होता है कि वो बीच में है, हो सकता है कि ग्रीन में चला जाए, यानी कि वो अच्छा हेल्दी बच्चा बन जाए, या रेड में चला जाए, तो ये हम मॉनिटरिंग जो है मुस्तकिल करते हैं। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ग्रोथ है ना, यानी ग्रोथ हमने पहले बात की है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ये 3 मंथ से स्टार्ट हो गए। 3 मंथ में बच्चा क्या क्या कर सकता है, 6 मंथ में क्या कर सकता है, 1 ईयर में क्या कर सकता है, 2 ईयर में क्या कर सकता है, 3 इयर्स में, इसी तरह 4 इयर्स में। तो हम जो है अभी तक इसको जो कर रहे हैं वो 3 इयर्स तक कर रहे हैं, 3.5 तक, बस उससे इससे बड़े बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे। और इसका जो है खुद हमने ट्रांसलेशन इसका करवाया है, और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन मौजूद है, और हम हार्शली से इसको शेयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और आप में से कोई भी इसको हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट कर ले, है ना, बहुत ही सिंपल है। और इसमें सिर्फ टिक मार्क करना होता है कि भाई बच्चा ये कर सकता है, उसको हमने टिक मार्क कर दिया। तो अगर जो है ज्यादा टिक मार्क नजर नहीं आ रहे, यानी कि नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पे हमको पीडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्क्रीनिंग टूल जो है वेल बेबी क्लिनिक में अब ASD का आ गया, MCHR। ये मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ करती हूँ, क्योंकि अभी हमने अच्छा टाइम पे मैनेज कर लिया, और हमारे पास इस वक्त 6:17 हुए हैं। तो अभी मैं 10 मैं खाली 5 मिनट इस पे दूंगी, तो ये भी आपकी समझ में आ जाएगा, फिर हम आपके क्वेश्चन ले लेते हैं ना। हाउ टू फिल आउट द क्वेश्चनर, एक तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो तो इजीली जो है ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर पे जाएं और इसको फिल करेंगे, तो खुद ब खुद स्कोरिंग बता देगा, है ना। वरना जैसे हम ऐसे एरियाज जहाँ लोग खुद नहीं कर सकते, हमने इसकी हार्ड कॉपी पूरी प्रिंट आउट निकाल लिया है, और हमारी नर्स जो है इसको पूरा फिल करती है ना। यस और नो में इसका जवाब होता है। पहला क्वेश्चन है, इफ यू पॉइंट एट समथिंग अक्रॉस द रूम डज योर चाइल्ड लुक एट इट, यानी अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करके बताती हैं कि ये चीज, तो क्या आपका बच्चा देखता है? यस और नो को आपको जो है वो टिक मार्क करना है। दूसरा है, हैव यू एवर वंडर्ड इफ योर चाइल्ड माइट बी डेफ, कभी आपको ये तो नहीं डर लगा कि आपका बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है, बहरा तो नहीं है? डज योर चाइल्ड प्ले प्रिटेंड और मेक बिलीव गेम, जो अभी पहले आपसे जिक्र किया, ये फोन किसी भी चीज को पकड़ के फोन बना लिया, या पुलिस बन गए, पुलिसमैन बन गए, या बच्चियां माँ बन गई, या टीचर बन गई, या सबको बिठा के वो पढ़ा रही हैं, तो इस तरह की कोई चीज करता है कि नहीं? फिर डज योर चाइल्ड लाइक क्लाइंबिंग ऑन थिंग, जैसे भी आपको बताया ग्रॉस मोटर इसमें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज इसमें बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं? डज योर चाइल्ड मेक अनयूजुअल फिंगर मूवमेंट्स, यानी कुछ अजीब अजीब वो मूवमेंट्स तो नहीं करता अपनी आंखों के सामने लाकर, है, तो ये ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डज योर चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू आस्क फॉर समथिंग और टू गेट हेल्प, उसको अगर कोई चीज चाहिए होती है तो कहे कि मामा मुझे ये चाहिए, यानी पॉइंट आउट करके कहे, है ना, अपने फिंगर से उस तरह इशारा करे कि मुझे ये चाहिए, तो ये हमको यस और नो में जवाब चाहिए होता है। फिर डज योर चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई चीज उसको बहुत अच्छी लग रही है, वो खुद उंगली से इशारा करके क्या कहता है ना, जैसे कोई उसने हवाई जहाज उड़ता देखा, एरोप्लेन देखा स्काई पे, या कोई बाहर गाड़ी जा रही है, या कोई कुत्ता जा रहा है, डॉगी जा रहा है, या कोई कैट जा रही है, और उसने जो है दिखाने की कोशिश की, ऐसा करता है। इफ योर चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों में उसकी दिलचस्पी है कि नहीं है ना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, ये कि उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। फिर डज योर चाइल्ड शो
you the things by bringing them to you, यानी कोई चीज उठा के आपके पास लाता है दिखाने के लिए, सिर्फ हेल्प लेने के लिए नहीं बल्कि आपको इन्वॉल्व करने के लिए ना. But does your child respond when you call his or her name? आप उसके नाम से पुकारती हैं, अम्मा इधर आओ, तो क्या वो आता है ना. तो ये इम्पोर्टेंट है. फिर when you smile, अगर आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते क्या वो आपकी तरफ स्माइल बैक करता है ना. फिर does your child get upset by everyday noises? जैसे आपने वैक्यूम चलाया, आपने जो है अपना ग्राइंडर चलाया, तो क्या उससे अपसेट हो जाता है. ये भी हम कल्चर वाइज देखते हैं असल में, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसे घराने हैं जो एक कमरे में पूरा की पूरी फैमिली होती है, उनके चारों तरफ शोर ही शोर होता है. क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हमें तो अपने हिसाब से देखना है ना. तो अगर कोई ऐसी चीज है कि जो अनयूजुअल के लिए कोई नॉइजेस हैं जिससे अपसेट हो जाता है, तो वो हमें नोट करनी है. डज योर चाइल्ड वॉक, क्या वो चल सकता है. डज योर चाइल्ड लुक यू इन द आई, वही आई कॉन्टेक्ट वाली बात, जब आप उसके कपड़े बदलाती हैं, कुछ करती हैं उसके साथ, तो क्या वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है. फिर डज योर चाइल्ड ट्राई टू कॉपी, जो आप करती हैं क्या वो भी करता है. अगर आपने बाय बाय टाटा किया तो क्या वो भी करता है. फिर उसके बाद जो है 16 क्वेश्चन कि इफ यू टर्न योर हेड टू लुक एट समथिंग, अगर आपने मुड़ के कोई चीज देखी तो क्या वो भी आपके साथ देखता है कि मामा क्या देख रही हैं. डज योर चाइल्ड ट्राई टू गेट यू टू वॉच हिम और हर, क्या वो इस चीज की कोशिश करता है कि आप क्या देख रही हैं, आपकी किस चीज में. डज योर चाइल्ड ट्राई टू गेट यू टू वॉच हिम, यानी कि वो अटेंशन गेन करना चाहता है, प्रेस चाहता है ना. और तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना. ये डज योर चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हेन यू टेल हिम और हर टू सम थिंग्स. फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट पॉइंट, कैन योर चाइल्ड अंडरस्टैंड ना. जैसे आप सिंपल कहें कि ये बुक टेबल पे रख दो, तो क्या वो उसको फॉलो करता है ना. तो इस तरह की छोटे छोटे जो सेंटेंस है, क्या वो उसको फॉलो करता है, वो करता है कि नहीं. फिर डज योर चाइल्ड लाइक मूवमेंट एक्टिविटीज, यानी हिलना जुलना उसको पसंद है, यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है, या कुछ और स्विंग कर रहा है, तो ये चीजें उसको पसंद है कि नहीं. तो ये देखिए 20 क्वेश्चन, और इसमें आपने देखा होगा 3 को जो है मैंने उसको रेड से किया है. बाकी सब अगर नो होंगे तो उनकी स्कोरिंग बनेगी, और जो रेड से है उनकी अगर यस होगी तो स्कोरिंग होगी. ये हम अपनी नर्सेस को, हेल्थ वर्कर्स को सिखा देते हैं, और हम जो है वो मदर्स को भी सिखा देते हैं ना. तो अब इसकी स्कोरिंग हम कैसे करते हैं कि अगर 0 to 2 है तो माइल्ड रिस्क है. फिर हमने उसको 2-3 महीने के बाद दोबारा बुला लिया, दोबारा उसकी स्कोरिंग कर ली, मे भी जो है उसकी स्कोरिंग बढ़ जाए, और मे भी जो है वो बिल्कुल ठीक है. 3 to 7 मॉडरेट रिस्क है, तो फिर यू मस्ट बी कॉन्शियस. 8 to 20 है तो सिवियर रिस्क है, तो हमें ज़रा डायग्नोसिस की करनी होगी. तो ये चिल्ड्रन फ्यूचर हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर करें. आई थिंक जितना क्विकली मैं जा सकती थी, और कोशिश तो मैंने यही की है कि सिंपल वे में आप तक बात पहुंच जाए. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं. जी जी हाशमी, नाउ इट इज ओवर टू यू. जी बहुत ही नहीं बहुत ही अच्छा. आई मीन बेसिक जो चीज हमें अगर हमारे मतलब मेरे लिए तो भी पर्सनली बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे बच्चों के वक्त ये पता होती तो कुछ और ही सिनेरियो होता अभी. मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि एक पेडियाट्रिशियन में जो आप मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट बट हमारे यहाँ हमने काफी बार देखा है कि पेडियाट्रिशियंस लोगों को ही इतना अवेयरनेस नहीं होता इन जितनी चीजों ने आपने हमें जो बताया है वही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पेडियाट्रिशियन तक भी पहुंच जाए. तो बहुत अच्छा हमें ये मिला है. थैंक यू सो मच. हम लोग इसकी तरफ मुड़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. नादिया आप लेना चाहेंगी क्वेश्चंस या मैं लूं? आप ले लें क्योंकि क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं, अगर आप देख लें जैसे आप चाहें. जी जी. What is our role as a pediatrician in management and diagnosis of autism?
मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस of autism. ऑफ ऑटिज्म। Yeah, pediatric. हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट और डायग्नोसिस में वी कैन नॉट सी द पार्टिसिपेंट्स व्हाई। अगर हमें पार्टिसिपेंट्स भी अगर नजर आए तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें किसी की भी वीडियो नहीं आ रही है, कम से कम मेरे इसमें तो नहीं आ रही है। कैन यू सी? जी डॉक्टर साहब, आर्य आप अपनी स्क्रीन को बंद करें, जो शेयर आपने की हुई है स्टॉप। वो तो मैंने स्टॉप कर दिया। अच्छा, लेकिन हुआ नहीं है अभी डॉक्टर अच्छा, आपकी तरफ से। जी हाँ अब हो गया। ठीक है, ठीक, अब हो गया। जी जी। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि एज अ पीडियाट्रिशियन इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में हमारा क्या रोल है ना? जी इसमें जी देखिए, जैसे एक डॉक्टर एक तो होता है, फिर उसके बाद पीडियाट्रिशियन होता है, और पीडियाट्रिशियन में भी मजीद जो सब स्पेशलिटीज होती हैं उसमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन आम पीडियाट्रिशियंस के लिए अवेयरनेस, जैसे कि हार्शले ने अभी कहा है कि पीडियाट्रिशियंस को भी नहीं पता होता, तो हम उनकी भी जैसे डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए ना, और खुद हम जो है वो एक्सक्लूड करते हैं कि इसको कोई और रीजंस तो नहीं है, तो दैट विल हेल्प इन द डायग्नोसिस, क्योंकि इट इज बाय एक्सक्लूजन। अगर हमने जो है इन केस को देखा कि एंटीनेटल में कोई प्रॉब्लम था, उसको रुबेला तो नहीं हो गया था, उसको टेटनस नहीं लगा था इंजेक्शन वैक्सीन, फिर डिलीवरी के वक्त उसको कोई हाइपोक्सिया, जैसे बच्चा बाद दफा डिलेड क्राई होती है, फिर बाद प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होता है, उसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो ब्लिरुबिन ब्रेन तक चला जाता है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बिहेवियर के इश्यूज भी होते हैं और भी चीजें होती हैं ना। तो ये चीजें एक्सक्लूड करना बाय ब्लड टेस्ट या जो भी तरीका है, चाहे ईजी करवाएं, बाद दफा एमआरआई कराने की जरूरत होती है जिसको HIE कहते हैं, यानी हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी, तो वो हम देख लेते हैं। फिर बाद दफा बच्चे पैदा तो सही होते हैं, लेकिन एक वर्ड यूज होता है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी जो है दैट्स ए मोटर डिसफंक्शन, और मोटर डिसफंक्शन के साथ मे नॉट बी विद द इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। बास की इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट बिल्कुल नहीं होती। वो कब होता है? जो बच्चे की जो ग्रोइंग एज होती है, जो अप टू 2 इयर्स पे बच्चे का ब्रेन जो है हाफ ऑफ द एडल्ट ब्रेन होता है। तो अगर उस वक्त बच्चे की सेरेब्रल पैल्सी डायग्नोस नहीं की, बाद में की, तो वो इंटरवेंशन अगर पहले नहीं हुआ तो उससे प्रॉब्लम होंगे। तो सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है कि अगर बच्चे को फिट्स पड़े, अभी लास्ट वीक ही मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे जिनको फिट्स पड़े और वो कहने लगी कि हम तो डॉक्टर के पास लेके ही नहीं गए, किसी दम कराने वाले के पास ले गए, दम करा के ले आए और बस वो घर चली गई। और उसके बाद 1 साल के बाद फिर उस बच्चे को फिट्स पड़े, फिर किसी ने कुछ मेडिसिन लिखी, जैसे अभी मैं मेंशन कर रही थी कि फिर उन्होंने थोड़े दिन वो मेडिसिन दी फिट्स की, फिर वो स्टॉप कर दिया, है ना। तो वो तो जिस तरह से मेरे लिए ये चश्मा जो है, ये ग्लासेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी, है ना, यानी हर बच्चे की नीड अलग होती है। तो मैनेजमेंट में मैं समझती हूँ कि पीडियाट्रिशियन का बहुत ज्यादा रोल है ना, कि हम उसकी सही वक्त में जो है, मैं अपने पास नहीं रखूंगी, मैं फौरन क्या करूंगी, रेफर करूंगी। जहाँ मेरा केस नहीं है, मुझे अगर रेफर करना है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वहां मैं रेफर करूं। अगर मुझे बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास करना है, मैं वहां करूं, है ना। तो ये मेन रोल मैं समझती हूँ कि डॉक्टर पीडियाट्रिशियन का है। और मदर्स भी जो है वो बिहेवियर डेवलपमेंट को बहुत कीनली ऑब्जर्व करें, और ये ना कहें कि भाई हमारी फैमिली में तो ऐसा ही होता है, सारे ही बच्चे देर में बोलते हैं या सारे ही बच्चे देर में चलना शुरू करते हैं, है ना। विटामिन डी डेफिशिएंसी के इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, CP चाइल्ड सेरेब्रल पैल्सी के, उनमें भी वॉकिंग के प्रॉब्लम होते हैं, और वो लोग लेके घर में बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं किया हुआ होता, है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बेशक पीडियाट्रिशियंस को बहुत ही सीखने की जरूरत है, और हमारी कोशिश यही है कि हम जितना लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम तो फ्री सेशंस कर रहे होते हैं। आई थिंक एनफ है इतना रिप्लाई। अगर और कुछ आप इसमें कुछ करना चाहें तो। ये एक EEG और MRI का लोग पूछ रहे हैं कि उसका जरा थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि उसकी जरूरत क्यों होती है EEG और MRI करवाने की, इन केस ऑफ अगर आपको ऑटिज्म का खदशा है। देखिए EEG जो है वो ब्रेन की जिस तरह ECG होती है,
वो ज़ाहिर है कि हार्ट की होती है, इस तरह ईईजी जो है वो ब्रेन की होती है। उसमें जो अनयूजुअल वेव्स होती हैं वो देख के हमें ये होता है कि उसको एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी उर्दू में कहते हैं, कि वो तो नहीं है। तो अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है ना। उसके ट्रीटमेंट के बावजूद देखिए ऑटिज्म मे और मे नॉट बी मतलब एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी। बाद में हो सकता है कि बच्चे को सीपी भी हो और ऑटिज्म भी हो। तो हम जो चीज हमें पता चल जाए उसका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर देना। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं उसकी भी क्लिनिकल डायग्नोसिस इतनी जबरदस्त है। जैसे अभी मैं आपको बताया लास्ट वीक में जो बच्चा है, मैंने सिर्फ उसको जो है 10 मिनट्स दिए और मैंने पूछा अच्छा पहले क्या करती है जब उसको फिट्स पड़ने लगते क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे फिट्स पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करती है, और मैंने फौरन लिख दिया कि इसको ये वाली एपिलेप्सी है। जबकि उसके पास ईजी जो थी ऐसे वक्त में शायद हुई कि जिस वक्त वो बिल्कुल सेटल डाउन थी, तो ईजी नॉर्मल देख के किसी ने उसकी मेडिसिन स्टॉप कर दी। मेडिसिन उस वक्त स्टॉप करते हैं अगर 3 इयर्स फिट्स फ्री पीरियड है ना। मतलब उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस तरह से एकदम से वो भी ग्रेजुअल टेपर करते हैं फिर स्टॉप करते हैं। और जैसे एमआरआई आपने कहा, तो एमआरआई जो है वो भी एक एमआरआई तो डिटेल होता है, कंट्रास्ट होता है। जो छोटे बच्चों का जो एचआईई के लिए हम करते हैं वो जस्ट एमआरआई स्क्रीनिंग, जिसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चे को एब्गार स्कोर अगर उसका सही नहीं था, कुछ हाइपोक्सिक इस्केमिक इफेक्ट्स अगर आए हैं तो वो हमें पता चल जाए, है ना। तो एक तरह से एक्सक्लूजन के तरीके हैं। ठीक है, बाज लोग मजे से कह देते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा था और पता नहीं हियरिंग टेस्ट क्यों करा दिया और एमआरआई क्यों करा दिया। देखिए ऑटिज्म का तो कोई टेस्ट नहीं है, जब मैं एक टेस्ट लिखूं और मुझे पता चल जाए, लेकिन कुछ चीजों के टेस्ट हैं जिसे मैं एक्सक्लूड कर सकती हूँ, है ना। तो ये हमको जो है अपने जहन में रखना चाहिए, आई थिंक, है ना जी। और या कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अनम्यूट कर दिया जाए। अनम्यूट, हाँ मैं करती, जो हैंड रेज है उनको मैं या कुर्रतुल एंड जमील, आप अनम्यूट करके आप पूछ सकती है आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इवन कि मेरा चाइल्ड ऑस्ट्रिया में था, बहुत समाल था, तब से वहीं पे था। इसके बावजूद कि मैं बेसिकली हर मंथ विजिट कर रही थी, आई वाज टेलिंग देम, बट डायग्नोसिस नहीं हो सकी मेरे बच्चे के टाइम पे। बट अब जो प्रॉब्लम है, मैं इस वक्त इंटरवेंशन ले रही हूँ। मेरा बच्चा पहले स्टिमिंग कर रहा था, बट हम उसको स्टिमिंग को नोट नहीं कर सके दैट ही इज डूइंग द स्टिमिंग रेपिटेटिव मूवमेंट। वो आईज ब्लिंक कर रहा था, तो हमने उसे कहा प्लीज आइज ना ब्लिंक करो, आइज ना ब्लिंक करो। उसने कुछ अर्से के बाद आइज ब्लिंक करना छोड़ दी। अब वो अपना शोल्डर जो उनसे रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहा है, शोल्डर को बार बार मूव कर रहा है। तो क्या कोई तरीका है कि वो शोल्डर को करना बंद कर दे, क्योंकि बहुत बुरा फील हो रहा होता है। आइज ब्लिंकिंग तो फिर भी कुछ ठीक थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि अवेयरनेस मदर्स के लिए भी जो मैंने कम्युनिटी को डिवाइड जो किया है कि चिल्ड्रन केयर गिवर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर दोनों की ट्रेनिंग की अवेयरनेस की जरूरत है। ज़ाहिर अगर मदर्स को पता होगा तो वो बार बार जाके डॉक्टर से कहेंगी कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसकी जो है वो असेसमेंट करवाएं। और ये जो आपने बताया ना, ये एक्चुअली तो बिहेवियर थेरेपिस्ट का काम है, लेकिन ये स्ट्रीमिंग बिहेवियर हाउ टू रीडायरेक्ट। देखिए हाउ टू रीडायरेक्ट का मतलब ही यही होता है कि बाज दफा हम लोग, बच्चा फर्ज करें कि अपने नाखून अगर चबा रहा है, तो हम एकदम से उसको या तो जोर से मना करेंगे या कुछ करेंगे, तो वो नहीं करना है। हमको उसकी अटेंशन डाइवर्ट करनी है, क्योंकि बच्चा अगर एक चीज गलत कर रहा है ना, फिर वो छोड़ के दूसरी कोई चीज पकड़ लेगा, है ना। तो ये इसका हमें बहुत ख्याल करना है कि ये आप अगर किसी बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जा रही हैं तो आपको जो है ना फिर वो अच्छे तरीके से बता देंगे और पूरी जो सेशन आपके साथ होगा ना। हाँ जी, मैं जा रही हूँ बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास। एक क्लिनिक, एक्चुअली मैं भावलपुर में हूँ एट दिस टाइम, तो बहुत अच्छा। स्मॉल सिटी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक स्पीच थेरेपिस्ट एसएलपी है, बाकी कोई भी मतलब फैसिलिटीज नहीं है। बट मैं जा रही हूँ तो वो कहते हैं कि आप इसको मना कर दें, बट मुझे डर है कि अगर मैं इसको मना करूंगी तो ऐसा ना मना हो करना कोई तो और है मना ही कर नहीं, दे। ये जो कहते हैं ना उससे बच्चे में और वो चीज और करता है फिर वो। और आप नादिया को ज्यादा अच्छा जवाब दे सकती हैं, वही मैं कहती हूँ इट इज टीम वर्क।
क्योंकि मैं हर चीज का नहीं रिप्लाई कर सकती जितना जो है, और जाहिर है कि डिफरेंट हर एक की एक्सपर्टीज होती है। जी नादिया आप बताएं। जी बिल्कुल कुरतुल्लाह ने, पहले तो ये कि ये टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं जल्दी से रिप्लाई देती हूँ कि जैसे अगर बच्चा आपका कंधे बार बार हिला रहा है तो आप उसको कंधों से ही उसकी 1-2 करा के उसको लर्निंग करवा दें, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप, और उसके बाद फिर किसी और चीज की तरफ आपने डायरेक्ट कर दिया, आप उसको क्लैपिंग करवाना स्टार्ट करवा दें, आप उसको एक्सरसाइज करवाना शुरू करवा दें, जंपिंग करवाना स्टार्ट करवा दें, मतलब उसको आपने रीडायरेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको देखें कि वो ऐसा करे, आप उसको किसी और, लेट्स गो आउट बेटा, लेट्स गो आउट, इस तरह करके आप करवा दें। मतलब आपने बच्चे को मना नहीं करना, आपने उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना। तो ये चीज होती है, क्योंकि जो स्टिमिंग बिहेवियर्स, जो भी रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, उनको हम खत्म नहीं कर सकते, उनको हमने मैनेज करना है। उनको अगर कोई चीज वो पाँव से कर रहा है तो हम पाँव का ही कोई दूसरा काम करवा देंगे। जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है पाँव हिला रहे होते हैं, तो हम उनको वॉकिंग स्टार्ट करवा देंगे, जंपिंग स्टार्ट करवा देंगे। टो वॉकिंग कुछ बच्चे कर रहे होते हैं, उनके साथ भी यही किया जाता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे अगर लगातार जंपिंग कर रहे हैं, क्या जैसे ये बच्चा अपना लगातार शोल्डर हिला रहा है, तो इनको हम इसी से नंबरिंग एक रिदम के ऊपर करवाएंगे, 1 2 इस तरह करके। तो वो फिर आप देखें कि वो उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसका थोड़े दिन बाद उस चीज से उसका ध्यान हट जाएगा। तो बस मदन ने मुझे जो है ना अभी बताया कि उनका ऑटिस्टिक बच्चा और दूसरा जो है ना वो इतनी फाइटिंग, तो अगर हम उनसे कहें कि फाइटिंग नहीं करो तो वो नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया कि उनको गुदगुदी करना शुरू कर दिया दोनों बच्चों को, तो वो फाइटिंग खत्म हो गई, वो हंसते हंसते फिर वो अलग हो गए। और उसके लिए एक हम उसको फंक्शनल भी कर सकते हैं, लाइक जैसे एक बच्चा मेरा था, उसका एग्रेसिव बिहेवियर था, मारता था, हिटिंग करता था, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में वो पंचिंग बैग नहीं होता वो लगा दिया। अब उसका जब दिल चाहता है तो वो जाके एक पंच उस पे मार के आके आराम से रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह आप ट्रेम्पोलिन रख ले, ट्रेम्पोलिन नहीं रख सकते आप सिंपल गद्दे बिछा दे नीचे, बच्चे को कहें उस पे जंपिंग शुरू कर दे। अक्सर बच्चे आप देखा होगा सोफों पे लगातार जंप कर रहे होते हैं, वही आप नीचे गद्दे बिछा दे, तकिए रख दें, बच्चा उस पे जंपिंग कर ले, तो वो हमने उस चीज को फंक्शनल बना देना होता है। So I think very you well. can reply. Yeah, very well answered, both of you. I mean, good. Okay. एक question मैं chat box में से लेना चाहूँगी कि मैम, how can Asperger syndrome detected? Because in assessment, a child is given a mild, moderate, and severe category, but no other syndrome are mentioned. इसमें देखिए जैसे हमने बात की थी कि डायग्नोसिस जो है वो असेसमेंट जब फुल होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो कि वेदर ऑटिज्म है या नहीं है, या उसके साथ जो है वो स्पेक्ट्रम में कहाँ है। तो वो कह रही है कि माइल्ड मॉडरेट तो लिखा हुआ था ना। अच्छा, एस्पर्जर में जो है वो जाहिर है कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट नहीं होती, तो उसमें ये यकीनन उन्होंने मेंशन किया होगा, क्योंकि जो डिटेल असेसमेंट होती है 5 डेज की, उसमें हर चीज की पूरी डिटेल होती है कि ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कम्युनिकेशन, हर चीज होती है। तो वो बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना, यानी कि उनकी कुछ चीजें भी थोड़ी सी ऑड सी लगती है, लेकिन उनका जहन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कामयाब लोग उसमें हैं। तो ये वो यकीनन एस्पर्जर ही होगा जो ये कह रही हैं कि, लेकिन ये कि जरा मैं क्योंकि उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, मैं जब तक असेसमेंट रिपोर्ट और पूरी हिस्ट्री लेती हूँ तब थोड़ा सा मुझे आइडिया होता है कि क्या हो सकता है ना, मोस्ट प्रॉब्ली। जी जी, उसमें उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि डू वी हैव एनी टूल्स टू नो हाउ मेनी मंथ्स किड इज बीइंग डिलेड, मतलब डज रील्स टेस्ट हेल्प विद दैट? नहीं, इसमें जो है ना, देखिए मैं आपको बताया कि सिंपल जो है, देखिए दोनों चीजों की अहमियत होती है। अभी पिछला हमने जो सेशन किया उसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि बच्चा जिस्मानी तौर पे तो बढ़ रहा है तो क्या दिमागी तौर पे नहीं बढ़ रहा, है ना। तो ये जरूरी नहीं होता, बाज़ बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन जो है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होता है, और बाज़ बच्चे जो है बहुत बिल्कुल वीक से लगते हैं लेकिन उनका सारी डेवलपमेंट सही होती है।
है ना। तो इसमें हमें ये देखना है कि जैसे आपको डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग का टूल दिया मैंने, वो मैं आपको इंग्लिश उर्दू दोनों आपको दे दूंगी, आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा लें। उसमें 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर सब, है ना। जहाँ पे हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम अपने डॉक्टर के पास चले गए, उनसे डिस्कस कर लिया, कोई टेस्ट की जरूरत है तो वो टेस्ट करवा लिया। तो ये सिंपल चीजें हैं, कोई इतनी इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आम मदद ना कर सकती। जो जरा सा भी पढ़ा लिखा है वो तो आराम से कर सकता है। बल्कि ASD स्क्रीनिंग जो है वो तो ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर पे जाके आप लोग शुरू कर दें, लोगों को भी बताएं। बल्कि मैं तो चाह रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ मास्टर ट्रेनर आए, कि उनको मैं और अच्छे तरीके से एक क्लास कर लूं। और जैसे कि 20 अगर मास्टर ट्रेनर है, फर्स्ट करें 20 इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, देखिए हम भी वॉलंटियरिंग ही कर रहे हैं, है। तो कुछ हम दूसरों की भलाई का सोचें कि 20 में से अगर 10 भी जो है कंटिन्यू करेंगे तो कितने कितने लोगों को सिखा देंगे ना, कितनी मदद की भलाई हो जाएगी, कितने बच्चों के लिए हो जाएगा। तो मैं तो इसी तरह से सोचती हूँ भाई, है। अच्छा डॉक्टर इसरा, एक थोड़ा सा रिग्रेशन पे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जो रिग्रेस कर जाते हैं बच्चे, लाइक 13 मंथ्स पे बच्चा रिग्रेस कर गया, बिफोर दैट ही वाज अ नॉर्मल टॉडलर, तो इसके बारे में थोड़ा सा उसमें जो रिग्रेस करते हैं ना, उसमें भी देखिए, जहां तक ऑटिज्म का, हम इस वक्त ऑटिज्म पे बात करने बैठे हैं, और ऑटिज्म का टेस्ट क्योंकि कोई नहीं होता, तो हमको तो शुरू से हिस्ट्री लेके और स्क्रीनिंग तो करनी है। क्योंकि स्पीच में भी जैसे आपको तो ज़ाहिर मालूम ही है कि बहुत से बच्चे बोलना सीख के और फिर एकदम से उनका बंद हो जाता है ना। तो और भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है और फिर अचानक से जो है। अच्छा, फिर इसमें जो है ना स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बात आज नहीं कर पाए हैं, कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो 0 to 2 ईयर्स जो है नो स्क्रीन। हम कहते हैं ना कि अपने को लगाओ, बच्चे को कार्टून में मत लगाओ, अपने साथ लगाओ। तो हम अपने साथ लगाने की बजाय हमें कुछ कुकिंग करनी है, कुछ काम करना है, बच्चे को बिठा दिया कार्टून के सामने। तो इतना मेरे पास इतने बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका स्क्रीन टाइम यू कांट इमेजिन के 5-6 आवर्स, कि जब भी कोई काम है मदर फादर को उन्होंने कार्टून खोला और बिठा दिया, तो उसमें वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, तो जो उसका लर्निंग का टाइम था वो निकल गया, है ना। 0 to 2 ईयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। और फिर 2 to 5 ईयर्स भी जो है सिर्फ 1 आवर, वो भी जो है फॉर लर्निंग, या कोई फैमिली की, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई जूम पे सब फैमिली वाले आ जाएं, हम बातें कर रहे हैं, तो मतलब कोई उसका पर्पस हो, ये नहीं कि बस ऐसे बिठा दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए, वो बहुत नेगेटिव चीज है। ठीक है जी। जी मैं एक अंशु जैन, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अनम्यूट करके आपका सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छा सेशन हुआ है, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है। मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या पॉसिबल है कि जो बच्चे में ऑटिज्म, जैसे जनरली हमें कई चीज़ें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें आज आपके थ्रू पता चली हैं कि इन कारणों से हो सकता है, पर क्या जो डिलीवरी के टाइम पर जनरली आजकल जैसे सी सेक्शन से ही होते हैं बच्चे, तो मेरा बेटा भी सिजेरियन ही हुआ था, तो मैम क्या पॉसिबल है कि डिलीवरी के टाइम पर अगर डॉक्टर मदर को ऑक्सीजन लगाना भूल जाए तो क्या उसकी कमी से भी बच्चे के ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये एक्चुअली उसी से रिलेटेड है जो HIE है ना, जो मैंने आपको बताया, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी। और पहले तो ये कि सी सेक्शन क्यों हुआ, मैं ये पूछती हूँ, किसी का सी सेक्शन हुआ है तो क्यों? एक तो इलेक्टिव होता है कि चलो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था तो हर बच्चे का सी सेक्शन ही की वजह से हो रहा है। बाज दफा कुछ रीजंस होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस होता है या कुछ और उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं लगी तो बच्चे को हाइपोक्सिया तो होगा, रह कि मदर को होगा तो बच्चे को होगा, है ना। तो ये सारी चीजें फिर सी सेक्शन के बाद उसका एवगार स्कोर वैसे ही चेकअप होता है जैसे कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में होता है, NVD जिसको कहते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप जानिए कि जहां भी बच्चा पैदा हो जाके पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे का एवगार स्कोर एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या था, ये जरूर हमें पता होना चाहिए ना, ताकि वो चीज हम जो एक्सक्लूड कर सकते हैं वो तो हम एक्सक्लूड कर लेंगे, नहीं वो रीजन नहीं था। ठीक है मैम एक्चुअली मेरे बेटे के टाइम पर
मेरे पेन नहीं हुए थे, तो उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, तो नॉर्मल डिलीवरी के ही चांसेस थे। बट वो बिल्कुल एंड टाइम में पता चला कि वो मतलब हो नहीं सकता, वो स्पेस उतना नहीं था, तो उनको वो करना पड़ा। बस उसी रीजन से करना पड़ा, अदरवाइज इंटरनली कोई दिक्कत नहीं थी। बट उन्होंने मेरी मैम डिलीवरी के टाइम पर टाइम ओवर हो चुका था, 10 डेज ज्यादा हो चुके थे। और जब उन्होंने लास्ट मोमेंट अल्ट्रासाउंड किया था, जिस टाइम मैं एडमिट थी और ऑपरेशन होना था, तो उस टाइम उन्होंने बताया कि पानी एकदम सूख गया है अंदर और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है और हमें इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और उस टाइम पर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया। और एक्चुअली उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ये चीजें हमें पता ही नहीं है कि हमें बोलना चाहिए क्या है, क्योंकि डॉक्टर हमसे ज्यादा बड़े हैं। तो उस टाइम पता ही नहीं था क्या हो सकता है। ऑटिज्म का भी बच्चा जब हो गया है, तब लाइफ में पहली बार सुना है कि ऑटिज्म भी कोई चीज होती है। तो मैम ये चीज तो पता ही नहीं था। बट मेरा जब दूसरा बेबी हुआ तो उस टाइम मैंने ध्यान रखा था, पर उस टाइम मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद से ही ऑक्सीजन लगाया था। पर मैम मुझे आज भी डाउट है कहीं ना कहीं जो मेरे बच्चे में है वो शायद उसी का ही कारण है। बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो आप साइंस बता रही हैं कि उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिस फ्लूइड में बच्चा होता है, और अगर वो सारा अगर लीकिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं तो उससे जो है ना इन्फेक्शन भी हो जाता है। और उसके बाद अगर वो कह रही ड्राई हो गया था बिल्कुल और उसकी दिल की रफ्तार बढ़ गई थी, दैट इज फीटल डिस्ट्रेस। मैम अराउंड जो मुझको याद है वो 180 शायद मैम ने बताया था, कुछ ऐसा। हाँ, 180 तो ज्यादा है। वैसे तो न्यूबॉर्न की थोड़ी सी हमसे ज्यादा ही होती है, लेकिन ये बहरहाल ज्यादा है। और ये उस वक्त जिसने देखा था, अगर फीटल डिस्ट्रेस था तो फौरन कोई कहते हैं ना राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये जो है ना मेडिकल में भी और हर जगह है, हर जगह राइट टाइम पे राइट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर है किसी ने इंटेंशनली तो नहीं किया होगा, मे भी हो जाता है कि हो सकता है उनको नहीं पता हो ये क्या, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये इन सब चीजों में अगर मदर्स की भी नॉलेज होगी ना, जब आपकी है, तो नेक्स्ट टाइम हो तो आप फौरन केयरफुल होंगी कि नहीं भी ऑक्सीजन लगाओ मुझे। बिल्कुल मैम। मैंने अपनी सेकंड बेबी के टाइम पर इसीलिए बहुत ध्यान रखा था, बट मेरे को कहना नहीं पड़ा, उन्होंने लगा दिया था अपने आप ही। अच्छा, दूसरे जैसे कि आपने कहा ना कि वो 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद पैदा होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो प्री टर्म और पोस्ट टर्म के अपने क्राइटेरिया है ना, उसमें वीक्स हमको देखना होता है, कितने वीकर है बच्चा, हम इसको प्री टर्म लेबल करें या पोस्ट टर्म लेबल करें, है ना। तो 42 वीक्स के बाद जैसे कि होता है, तो जाहिर कि ये तो सारी मेडिकल की चीजें और इतना जाहिर लोगों को पता भी नहीं होती। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो वो कोई इतना काउंट नहीं करता है ना, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस बहरहाल काउंट करता है। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा डॉक्टर सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स के बहुत जहन में होता है कि अगर पहले बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम वो क्या टेस्ट ऐसा करवा सकते हैं कि जिससे श्योर हो जाए कि दूसरे बच्चे के साथ ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर पहले बच्चे को वाकई ऑटिज्म ही लेबल किया है ना, क्योंकि मैंने उसमें कॉजेज में आपको बताया कि कुछ जेनेटिक बहरहाल होती हैं चीजें, है ना, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो अगर जो है बाकी चीजें एक्सक्लूड कर ली गई हैं, क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया ना, एक बच्चा ऐसा है जिसको जो है वो इस वक्त, हालांकि काफी बड़ा बच्चा है, अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि पहले ऑटिज्म हुआ था या पहले ग्लूटेन सेंसिटिविटी हुई थी, और उसके क्रोमोसोमल एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फील्ड है। और ऑटिज्म के लिए अभी तक जितना मेरा इल्म है, मे भी ये मुझे ना पता हो, लेकिन ऑटिज्म के लिए अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम पहले से क्रोमोसोमल एनालिसिस कर लें। जैसे डाउन सिंड्रोम के लिए है, ट्राइसोमी 21 पता चल जाती है। थैलेसीमिया हम कहते हैं कि इतने वीकर है बच्चा, आप जाके सीवीए करवा लो, पता चल जाएगा थैलेसीमिया है, तो उसको एबॉर्शन करवा लो। हम लेकिन ऑटिज्म का कम से कम मुझे आई डोंट नो कि ऐसा कोई भी टेस्ट है कि अगर पहले बच्चे को है तो दूसरे को होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। जी जी, Gayatri Ambure, ma'am, you can unmute and ask your question. Yes, ma'am. एक मिनट। Yeah. हेलो
हाँ 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 मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल मैम आ रही है। एक्चुअली मुझे दो बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है और दूसरा मेरा 3.5 ईयर का बेटा है। तो 7 साल की बच्ची का मेरे 18 मंथ में ही ASD डायग्नोसिस हुआ था, लेकिन सेकंड बेटे का मेरा 2.5 मुझे पता ही नहीं चला कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वो माइल्ड ये दिखा रहा है मैम सिम्टम्स। तो वो क्या करता है मैम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से मैंने उसका असेसमेंट नहीं किया है किधर भी जाके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसके बहन को देख के कॉपी कर रहा है या खुद उसका बिहेवियर वैसा हो रहा है। वो क्या करता है मैम, कुछ कहानी सुनाए उसको तो उस कहानी का कुछ पार्ट लेता है, बात करता है और मैप करता है रियल लाइफ से। और दूसरी बात, वो रिपीटेटिव बिहेवियर बात करता है, ऐसे कि मुझे जाना है ऐसा बात करता है मराठी में, मला जायचंय मला जायचंय। नहीं बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी घरों में इस तरह के भी, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज़ाहिर बहुत होते हैं और ये चीज इतनी वाकई प्रॉब्लम में है कि अगर बड़ा बच्चे को है तो छोटा बच्चा उसकी सारी चीजें कॉपी कर रहा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो उसका जब तक जो है सही तरह से असेसमेंट नहीं होगा, अच्छा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप स्क्रीनिंग बहरहाल कर सकती हैं कि आपके थोड़ा सा जहन में रहे कि अगर माइल्ड भी है तो इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें, हाँ है ना। मैम, और कुछ थोड़ा सा टाइम उसका ऐसा होना चाहिए ना, जिसको कहते हैं ना क्वालिटी टाइम, कि एक तो ज़ाहिर है कि घर में इंसान रहता है, सब लोग रहते हैं, सबके असरात भी हमारे ऊपर होते हैं, लेकिन उस बच्चे को कुछ क्वालिटी टाइम दे के जो है उसकी लर्निंग ना, क्या एज आपने उसकी बताई? सॉरी, एज 3.5 है मैम। हाँ, तो उसकी देखिए ना, अभी इस वक्त फौरन हो जाना चाहिए ना स्क्रीनिंग, क्योंकि अब वो उस टाइम से निकल रहा है, बल्कि थोड़ा सा और पहले आपको कर लेना चाहिए था, ताकि उसका असेसमेंट, अब तो मतलब टेलीथेरेपी और ये सब चीजें बहुत हो रही हैं, तो आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी को अप्रोच करें ना, कि ये हो जाए इसका ना एज अर्ली एज मैम पॉसिबल। क्योंकि वो क्या कर रहा था, 1-2 महीने पहले वो पूरा उसके नाम को रिस्पॉन्स देता था, उसके कजिन के साथ खेलता था। हमारे घर में टोटल 4 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है मेरी मैम। लेकिन वो अभी क्या कर रहा है, अलग से जाके खेलना है उसको, कोने में जाके खेलना है, वो दूसरे भाइयों को उधर बुलाना है, उसका नहीं सुना है तो चिड़चिड़ कर रहा है। लेकिन बाकी सब चीज बराबर है मैम, इमोशंस, उसको कपड़े की चॉइस है, उसको गुस्सा है तो वो दिखाता है, वो साइकिलिंग करता है, बाहर घूमता है, बाकी नॉर्मल लगता है। फिर कभी कभी लगता है इसको कुछ प्रॉब्लम है, कभी कभी लगता है इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिर्फ ये हो रहा है, मूडी हो रहा है वो घर में बैठ बैठ के। मेरा ये ख्याल है समझ उसको में। इंडिविजुअल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ज्यादा है ना अच्छा है। ओके मैम, चलेगा जी मैम। जी ठीक है, फिर दोबारा हम आपसे बात कर लेंगे, है ना, कि अगर मौका होगा तो, या आप हमारे टेली क्लिनिक पे डिस्कस कर लीजिएगा, नादिया से भी आप कर सकती हैं। ओके मैम, नादिया मैम काफी प्लीज लिंक अच्छा जो भेज है दीजिएगा। वो सेशन करती हैं, काफी लोग उनसे सेटिस्फाइड होते हैं, और ओके अगर इंडिया में कोई मिल जाए तो वहां भी आप कर सकती हैं। ओके मैम, पहले मुझे हमारा चैट बॉक्स टाइम में जो है लिंक वो, भेज दिए मैम, चलेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। आई थिंक मेरा हाँ। ख्याल है कंक्लूड कर लेना चाहिए अब, है ना। ओके, एक 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 क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काफी जहन में होता है कि हाउ डू वी नो डेवलपमेंट एज इफ चाइल्ड एट अ टाइम ऑफ डायग्नोसिस और रीडिंग, इट मे ऑल डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द चाइल्ड, सिचुएशन और इवन सर्कमस्टांसेस। मतलब काफी टाइम ये होता है ना कि हम जब कर रहे होते हैं उनका असेसमेंट, तो अभी हमारे बच्चे मूड होता है तो नहीं करेंगे, तो असेसमेंट में गलतियां, तो वो कैसे नहीं, ये होता है? असेसमेंट जो है ना, ये टाइम फोकस्ड नहीं होता, ये ओवरऑल होता है। जी चाहे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग हो, चाहे एएसडी हो, वो एक टाइम पे नहीं होती, बल्कि हम लोग जो करते हैं, हम वो बच्चे को तो उसमें बिठाते ही नहीं है, हम तो जो है पेरेंट्स को से बात करते हैं। और मैं एक दफा में जैसे उसकी मिसाल देती हूँ कि देखिए, बात फर्स्ट टाइम आपका ब्लड प्रेशर को चेक करता है तो हो सकता है हाई आ जाए, तो फर्स्ट रीडिंग कभी भी जो है रिलायबल नहीं होती। तो मैं कहती हूँ अच्छा एक दफा स्क्रीनिंग की है ना, फिर हम 1 महीने के बाद फिर थोड़ा सुकून से करूंगी, है ना, फिर उसके साथ बैठ के करती हूँ, तो उसमें कितनी मतलब फर्क आ जाता है। तो हम उनको सिखाते हैं कि देखो ऐसे स्क्रीनिंग करना है, कोई एक टाइम नहीं, ओवरऑल बच्चे का असेसमेंट होता है ना। और ये जो यस और नो होता है ना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यस होगा तो हम यस को करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम नो होगा तो हम नो को करेंगे। ठीक है। जी 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 जी। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट हमारे पास टाइम की कमी है, हाँ तो हम जरूर
नेक्स्ट हम लोग उसमें लेंगे, और कुछ हो तो आप मुझे पर्सनली भेजिए, मैं बिल्कुल। खुद आपकी तरफ से आंसर करवाते हैं। थैंक यू ठीक सो है। मच। हम लोग मतलब यू बिल्कुल वेलकम, यू वेलकम। नेक्स्ट इसी तरह हम अभी ये शुरू हुआ इस तरह का जो हमारे सेशंस है, हमने स्टार्ट विद स्क्रीनिंग से किया है, और हम लोग जरूर आगे बढ़ना चाहेंगे इसमें। एक एक स्टेज वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अजरा रफीक एंड नादिया रियाज, थैंक यू सो मच। आपने हमें काफी मतलब गाइडेंस दिया, और बहुत ही अच्छे से हमें काफी बारीकियों से हमें पता चला है आज। एंड थैंक यू पेरेंट्स, एंड सॉरी हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं ले सके। ओके, कांटेक्ट नंबर मांगे आप, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम लोग आपसे वहीं पे आपका कांटेक्ट नंबर और मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। वी आर ऑल्सो वेरी 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 थैंकफुल टू यू ना, कि हमें आपके थ्रू जो है इतने लोगों को हमने एड्रेस किया और उन तक हमारी पहुंच हुई और अवेयरनेस हुई है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है इस चीज से ना। जी तो जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत, वी आर सो थैंकफुल टू यू। डॉक्टर अजरा आपके क्लिनिक और इनका कुछ नंबर मांगे, आप अपनी वेबसाइट एक बार बोल देंगे तो वो सब आपको वहीं से- टेक्स्ट कर दूंगी मैं, है ना, नादिया कर जी देंगी। जी 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 जी। जी ओके। जी। और जिस ग्रुप के थ्रू आप इधर आए हैं उनका भी बता दें तो हम उधर भी बता दें कि नंबर वगैरह शेयर कर देंगे टेलीक्लिनिक का। जी 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 जी। चलिए, थैंक यू सो Thank मच, you वाज so रियली अ much. नाइस सेशन। और सॉरी टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स अगेन जिनके क्वेश्चंस रिप्लाई होने से रह गए। हाँ तो बिल्कुल। अगली दफा फिर कोशिश करेंगे कि सबको रिप्लाई कर सके जो रह गए हैं। Oh yeah, yes, yes. Thank you so much. Good night, everyone. Bye bye. बाय बाय बाय। बाय। Bye. थैंक यू।